کیا ہے، لہذا وہ جرم ثابت ہو چکا۔ دوسرا جو اسی جرم کو ثابت انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ANF جو ہے اس نے میری تمام پراپرٹی کے اوپر جو ہے فریز کی ہوئی ہے، اور جب یہ پراپرٹی ڈی فریز ہوگی تو ہم اس پہ کنسٹرکشن کریں گے۔ ایک سوسائٹی جس کی NOC نہیں ہے، جس کا زمین جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں یہ لکھتے کہ میں اپنے پلاٹ کینسل کروں گا، ایک میں معذب قسم کا ذمہ وار آفیسر ہوں اور میں اس معاملے کو ختم کروں گا، ہمیں لکھ کے بھیجا گیا کہ میں پھر اس پہ کنسٹرکشن کروں گا، یعنی کہ اپنے جرم کو مزید انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز پہ ثابت کر لیا کہ واقعی پہلا جرم یہ تھا کہ پیسے نہیں دیے گئے، رشوت کے طور پہ لیے گئے، دوسرا جرم یہ ہوا کہ اس کی پیمنٹ کی گئی، اور تیسرا جرم اس کو فراڈ کو ایک فراڈولنٹ ایکٹیویٹی یہ کی گئی کہ جی میں اس پہ کنسٹرکشن کروں گا۔ ابھی ہم نے 6 تاریخ کو ان کو طلب کیا تھا، یہ حاضر نہیں ہوئے، ہم نے عدالت سے ان کا نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ لے لیا ہے۔ ہماری ٹیم اس وقت کوسار پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم درخواست کر رہے ہیں کہ روزنامچے میں اس کی انٹری کی جائے اور قانون کے حساب سے مجرم کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس عدالت کے حکم نامے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اسی طرح سے ہم نے IG جو اسلام آباد ہیں ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے، ان کا ایک کیس ہے یہاں پہ سیف سٹی کے معاملے میں، اور یہ یاد رہے کہ مجرم کہیں پہ بھی ہو پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر، اگر FIA پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، ہر جگہ کسی بھی مجرم کو اس کا حق پہنچتا ہے، قانونی اس کی ثوابدید ہے، وہ اریسٹ کر سکتا ہے، تو ہم بھی اپنے مجرم کو چاہے وہ کسی پوزیشن میں ہے اس کو اریسٹ کرنے کا جو قانونی مجاز اور حق رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ٹوٹل آج کے جو کیس پہ میں نے آپ کو بریف کرنا تھا، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جس طرح FIA کو حق ہے کہ وہ اسلام آباد اپنے ملک کو گرفتار کر سکتی ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد IG کو لکھ دیا ہے نوٹس، ان کو جو ہے نوٹس بھیجا ان کی انکوائری کے حوالے سے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب ادارے جو ہیں یہ سیاسی طور پر ان کو لڑایا جا رہا ہے کہ آپ رانا ثناءاللہ کو گرفتار اس وقت کر رہے ہیں کہ جب کل تو اہم گرفتاریاں ہوئی، اور اب آپ نے ان کو نوٹس بھی بھیج دیا، FIA والے اپنی کارروائی کر رہے ہیں، تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں یا افسران کو آپس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں کوئی 200 آپ کو کیس ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں میڈیا سے کہ جرم کو دیکھا کریں۔ میں نے اگر جو جرم بیان کیا ہے آپ کہیں جی آپ کا جرم جو ہے وہ بے بنیاد ہے، فریولس ہے، جھوٹا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، جرم جس نے بھی کیا ہے وہ مجرم ہے، چاہے وہ رانا ثناء ہے، چاہے وہ A ہے، چاہے وہ B ہے، چاہے وہ C ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی پولیٹیشین کے جرم کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ پولیٹیسائز کیس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جرم کے حساب سے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، یہ جرم بالکل سٹینڈ کرتا ہے اور ثابت ہو چکا ہے جہاں تک ہماری FIR کا تعلق ہے۔ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے یہ بھائی نے جو بات کی، یہ ساری پولیٹیسائزنگ ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سوسائٹی تب بنی، رجسٹر تب ہوئی، پھر 2022 میں جا کے اس کی وہ رانا صاحب کروا رہے ہیں، پیمنٹس وغیرہ کروانے کا وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ نہیں کر چکے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ اس کو کیا جا رہا ہے جس وقت ملک کا سیاسی ماحول انتہائی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اوپر سے اپنے IG اسلام آباد کو بھی طلب کر دیا اور آج ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی نوٹس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے آپ جیسے سیریس اور میچور آدمی جب اداروں میں اس طرح استعمال شروع ہو جائے گا تو کیا لگے گا پورا اسٹیٹ ہی مشینری بیٹھ جائے گی ساری کی ساری، کہ احتساب کے نام پہ سارے ادارے ایک دوسرے کے خلاف استعمال شروع ہو جائیں گے۔ استعمال لفظ تھوڑا سا غلط ہے، ادارے اپنی قانونی حدود کے اندر رہ کے کارروائی کر رہے ہیں۔ کہیں بھی کوئی ادارہ اگر اپنے حدود سے باہر نکلتا ہے تو پھر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے کارروائی ہو رہی ہے تو اس کو پھر آپ باہر سے جو مرضی نام دیتے رہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم اس کو عین قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی قرار دیتے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ رانا ثناء اللہ کے لیے 10 کروڑ کے 2018 میں نوٹس کی رجسٹری کروائی، رجسٹری کتنی مالیت کی کروائی گئی؟ 9 لاکھ کی۔
और एक्चुअल जो है वो प्लाट की मालियत इस वक्त क्या बनती है? पहली बात यह है कि 9 लाख की जो रजिस्ट्री करवाई गई और कहा गया ये पेमेंट की गई, वही गलत बयानी है और बोगस है, रजिस्ट्री बोगस है, साबित हो गया ना। वहाँ उन्होंने कहा आपने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट अभी जाके की है, पहले तो वहाँ पे चीज़ बोगस हो गई। अभी जब सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी NOC नहीं है, तो मैं आपको एस्टिमेट क्या दूँ, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो, कानूनी उसकी हैसियत तो मैं उसको बता सकता हूँ। जब उसकी कानूनी हैसियत ही नहीं है, NOC नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ कि आपको उस प्लाट की क्या कीमत है। सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फिर असेस कैसे किया कि 9 लाख इनकी ड्यूटी बनती है? कुछ ना कुछ तो उन्होंने इस वक्त रेट वो देखें, वो और चीज़ है, उसको आप मिक्स अप ना करें। वो एक होती है DC वैल्यू, हर ज़मीन की पाकिस्तान में जहाँ भी जाएंगे तो डिप्टी कमिश्नर वैल्यू होती है, वो होती है टैक्स पर्पसेस के लिए कि इससे नीचे आप कीमत नहीं लगा सकते। तो वो जो टैक्स वैल्यू के हिसाब से जो उन्होंने कीमत लगाई है, ये 9 लाख नहीं बनती बल्कि ज़्यादा बनती है, ये ज़्यादा बनती थी 10 कनाल की। तो वो भी वहाँ पे एक और फर्द जुर्म इन पे आयद है इसी मामले में, जो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया। साहब का जो है उस पर भी ये इल्जाम था कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी की मद में टैक्स बचत हुई उस पर केस एंटीकरप्शन में लग रहा था। दूसरा इसी महीने का केस गोसिया बिल्डर जो फराक रोटी की जो कंपनी थी जिस पर बाकायदा गुजरांवाला में एंटीकरप्शन एक सोर्स रिपोर्ट पे केस भी जो है तहकीकात चल रही थी एंटीकरप्शन के अंदर कि उन्होंने फाइलें बेची जबकि फ्रॉड सिरे से गवर्नमेंट भी नहीं हुई। तो इसको कैसे देखेंगे आप, मतलब क्या वो सही थे कि ये केस सही है? देखिए, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी मामला आएगा ना, तो गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड है, बॉटम लाइन है, उसे जब कोई नीचे टैक्स पे करेगा तो उसमें फर्द जुर्म आयद होगा। अगर उसके बराबर करता है तो ठीक है। हालांकि होता क्या है, जहाँ पे 9 लाख या 10 लाख वैल्यू होती है जहाँ टैक्स पे किया जाता है, हो सकता है कि असल मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपया हो। ये गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर खामी भी है, लेकिन इस तरह से इधर से कोई सवाल नहीं है। अभी आपने उनके खिलाफ रिश्वत का पर्चा भी काट दिया, वारंट भी जारी कर दिए। अभी आप कह रहे हैं वो जो सोसाइटी है वो गैर कानूनी है, गैर रजिस्टर्ड है। पहली बात, अगर वो गैर रजिस्टर्ड है तो रिश्वत आप कैसे कह सकते हैं? अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, अगर वो कागजात भी मौजूद नहीं है वो सोसाइटी, तो रिश्वत उस वक्त होगी जब उसका कानूनी वजूद होगा। कानूनी वजूद नहीं है तो रिश्वत कैसे होगी राना सनाउल्लाह के खिलाफ? और दूसरा, अगर कानूनी वजूद नहीं था तो फिर 9 लाख वो किस मद में लिए गए राना सनाउल्लाह के? अगर वो गैर कानूनी है, अगर उन्होंने 2 प्लाट ले लिए हैं, तो सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे आप लोग? क्या वजह है? सिर्फ राना सनाउल्लाह को टारगेट किया होगा? कानून ये कहता है कि अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस का पब्लिक ऑफिस होल्डर थे ना, वो लॉ मिनिस्टर थे, अपनी तनख्वाह के अलावा जब भी किसी शख्स से कोई चीज़ बलाजवाज लूँगा, ये रिश्वत कंसिडर होगी। ये कानून है। अभी उसमें आप जितने भी इफ़ बट्स करते रहें, लेकिन एक शख्स, अगर मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ जहाँ पे लॉ मिनिस्टर था और एक आम आदमी होता तो मुझे किसी ने प्लाट देने थे, तो इससे हम क्या कहते हैं, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। जहाँ अपनी तनख्वाह के अलावा कोई भी तोहफा किसी से लेते हैं, कोई भी चीज़ आप लेते हैं, तो वो कानून उसको, हमारे एंटी करप्शन एक्ट के तहत उसको रिश्वत कहता है। देखिए, हमने वारंट इशू कर दिए, अदालत ने इशू किए, हमने नहीं किए। उसकी कार्रवाई ये है कि हम मुताल्लिका थाने जहाँ पे मुजरम रहता है वहाँ पे हम चले गए हैं कि हमें फोर्स दें और इस मुजरम को हमारे हवाले करें। अभी उस थाने पे डिपेंड करता है, उस पुलिस पे डिपेंड करता है कि वो ताबन करती है नहीं करती। अगर नहीं करती, जी बिल्कुल, हमारी टीम वहाँ बैठी हुई है कि उसमें तरीका ये होता है कानूनी कि आप जाते हैं मुतल्लिका थाने में, रोजनामे में जाके एंट्री करते हैं, उस फोर्स को साथ लेते हैं और जहाँ पे जाके मुजरम होता है उसको अरेस्ट करते हैं। अब तक की जो लेटेस्ट इतला है वो ये है कि आपकी टीम थाना गुलसार गई थी, थाना गुलसार में उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की हदूद में नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपसे ताउन करने से इनकार कर दिया। अब आपका क्या लाया? हम जाके अदालत से रुजू करेंगे कि आपके हुक्म की जो है ना खिलाफवर्जी की गई। जिन लोगों ने 9 लाख रुपए रकम ली है उनकी
खिलाफ हम क्या कार्रवाई करेंगे। दूसरा IG जो अकबर नासिर है, गुलजार साहब की 4 साल 3.5 साल पता नहीं उसमें कोई केस नहीं बना, क्या इनको प्रेशराइज करने के लिए जो 25 मई को उन्होंने इकदाम किए, प्रेशराइज करने के लिए मुकदमा सियासी तौर पर बनाया गया? मुकदमा जो दर्ज है उसकी FIR बड़ी क्लियर है, उसको अभी आप कोई भी नाम दे दें, फर्द जुर्म उसमें बड़ा क्लियर है, आयद किया गया है। एक कंपनी है जिसको उन्होंने बेनिफिट दिया है और अनड्यू बेनिफिट दिया है, और वो पूरा जुर्म किया उन्हें और करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया। आप सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि सर जैसे आज दोस्त मोहम्मद गुदारी को साबिक डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया है कि उनके ऊपर इल्जाम हैं कि उसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, इसी तरह सेम केस है शीरी मदारी का है, और उसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार उनके भाइयों के साथ, क्या उनके केस अब खत्म कर दिए गए हैं? आप दोस्त मदारी उसी रडार पे आ गया, ज़मीन सबके पास सरकारी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, दोस्तों मजारी का जो है ना, जो उनके फ़र्द जुर्म है वो ये है कि 8,770 एकड़ ज़मीन है जिसके उनका कब्ज़ा है, सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन है, ये उनके ऊपर फ़र्द जुर्म है। अगर वो साबित कर देते हैं कि अपनी ज़मीन है, कागजात सही हैं, जब वो आएंगे तो हम उस जुर्म को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल फ़र्द जुर्म ये है। शीरी मदारी का जो केस था, ज़रा समझ लीजिए, 1972 में जब वो उनकी उम्र महल है 15-16 साल होगी, उनके एक अगर आपको याद हो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स किए थे। लैंड रिफॉर्म्स के तहत कहा गया था कि होल्डिंग इससे ज़्यादा नहीं हो सकती ज़मीन की, और अगर ये आपने ज़मीन देनी है तो ऐसी कंपनीज को आप दे सकते हैं। उस कंपनी को डिफ़ाइन किया गया था उस ज़माने में, जिसके पास ट्रैक्टर और थ्रेशर होता था तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी 70s में, इस तरह की कंपनीज थी। वो उन कंपनीज को ज़मीन दे दी गई। उस वक्त एक कमीशन होता था, लैंड कमीशन, और याद रहे लैंड कमीशन को हेड करता था MNA, ठीक है, या MP हेड करता था। वो जो लैंड कमिश्नर था वो उनके वालिद का अपोनेंट था जो हेड कर रहा था कमीशन को। तो उसने जो डिग्री दी वो इनके खिलाफ दी कि आपने जो कंपनीज को ज़मीन दी है ये जाली कंपनियां बनाई हैं, आपने गलत दी है, ठीक है। उसको उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो कमीशन ने डिसीजन किया ये गलत है, और उनके हक में फैसला दे दिया। कमीशन एग्रीड होकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है अगेंस्ट द कमीशन वो ठीक है। यहाँ तक केस जाता है। अभी शीरी मदारी पे केस क्या बनता है कि जो इनिशियल कमीशन ने फैसला किया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। किसी ने ये नहीं देखा कि उसके ऊपर हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, इसलिए वो केस भी कोर्ट के अंदर गया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन साथ लगे तो वो केस खत्म हो गया। ये शीरी मदारी का केस था। ये बताइएगा, हमारे 3 अदारे हैं सिविलियन, यानी एक 2 वफाकी हैं, नैब और FIA, तीसरा हमारा ये पंजाब वाला जो है करते हैं। इन अदारों से कभी आप बंदे को कोई दलील दी है सवाए सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के? क्या आप फ्रैंकली नहीं समझते कि तीनों अदारे बंद कर देने चाहिए और इससे मुल्क का निज़ाम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और अदालतों से रुजू कर देना? पहली बात यह है कि बंद कर देना, तोड़ देना, ये बड़ी आसान बात है। एक सेंटेंस लिखा जाएगा कि एंटी करप्शन को इस तारीख से बंद कर दे तो बंद कर दिया जाएगा। ये कोई अच्छा, ये मनफी इक़दाम है। मुस्बत इक़दाम क्या है कि इन अदारों को आप बेहतर करें, इनके अंदर इंटेग्रिटी लाएँ, अकाउंटेबिलिटी लाएँ, ट्रांसपेरेंसी लाएँ। अभी नैब के अदारे को देखें ना, मैं हकीकतन आपको बताता हूँ कि मैं नैब की तरफ से रिसोर्स पर्सन UN के अंदर रहा हूँ। नैब का एसेट्स रिकवरी में चाइना ने 8 जुलाई 2012 को हमें रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लोगों को आके टीच करें, पढ़ाएं, गाइड करें कि एसेट्स रिकवरी कैसे की जाती है। नैब इज़ लीडिंग एसेट्स रिकवरी इंस्टीट्यूशन था दुनिया के अंदर। आपने उसको क्या अशर कर दिया। चाहे उसको आप इम्प्रूव करते, आपने उसको एक ही लाइन, एक ही 4-5 कागज़ के सफ़े लिखे और उसको 0 से ज़रब दे दी। अदारों को हमेशा सजेस्ट किया करें कि इनको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप कहते हैं इनको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाए? ख़त्म तो फिर बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। प्लीज। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा दोस्त मदारी ने 8,770 एकड़ सरकारी राज्य पर कब्जा कर रखा है। ये कब से उन्होंने कब्जा किया और जब वो आपके डिप्टी स्पीकर थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, तो आप उनके उस सरकारी कब्जे को महकमा एंटी करप्शन या मुतल्लिका अदारे
उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे, उस सरकारी राजी में कब्जे में आज क्यों याद आया उनको कि आपने उनको बुलाना है, उनसे पूछना है कि आपने ये कब्जा क्यों किया? ये बताइए। तहफ़्फ़ुज़ तो मेरा ख्याल है कोई अदारा नहीं करता। अदारों से इस वक्त भी लाखों एकड़ ज़मीन है जो कि सरकारी कब्ज़े में है। सिर्फ ये होती है कि वो आँख से ओझल होती है या आपको पता नहीं होता। वो हमेशा कहते हैं ना जी कि मेरा केस क्यों शुरू किया, फलाने का क्यों नहीं शुरू किया। तो हर शख्स को जब टोकन मिलता है तो राशन भी उसी को मिलता है। तो जब जुर्म किसी का सामने आएगा ना जी तो वो शुरू हो जाएगा। और ये इन्हीं की केसेस नहीं हैं बल्कि हंड्रेड्स और केसेस हैं। और इस वक्त तक आप हैरान होंगे कि जो पिछली 3.5 साल का दौर था उसमें तकरीबन 242 अरब की इस मद में ज़मीनों के तावान से रिकवरीज हुई हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्त मोहम्मद साहब एक अकेले बंदे हैं जिनको किया गया, सबके साथ जो है ना वही बर्ताव किया जा रहा है। आप सवाल पूछ चुके हैं, आप भी पूछ चुके हैं। आपकी बात है, अब आपको सरदार दोस्त मोहम्मद मुजारी का टोकन नजर आ गया है, आपको नजर आ गया कि एंटी करप्शन का काम करना चाहिए। अब जो पीटीआई के लोग हैं जो मिनिस्टर लेवल के उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू कर रहे? ले ना एविडेंस लाए, एविडेंस आएगी। सरदार दोस्त मोहम्मद मुजारी के खिलाफ हमने एविडेंस नहीं दिए। देखिए हमारा अदारा जो है ना उसमें एक जो है यह कंप्लेंट डिवीजन है ड्रिवन। जब कंप्लेंट आएगी तो काम शुरू होगा या सोर्स रिपोर्ट आएगी। जब भी सोर्स रिपोर्ट आई आप मुझे मोरद इल्ज़ाम ठहराइएगा कि इस पीटीआई के बंदे की आपके पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने लाके दी, आपने केस नहीं बनाया, फिर बात है। ठीक है, मैं आपको वादे से कहता हूँ कि चाहे पीटीआई है चाहे नून लीग है, जहाँ स्टेट का पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे मैं केस लाजमी बनाऊँगा। ठीक है ना, मेरे 22 साल हो गए वाइट कॉलर क्राइम में लड़ते हुए लोगों के साथ। मैंने कभी स्टेट के इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आज भी नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच। साहब एक आखिरी सवाल आपका, आपने भी